हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। So today we are discussing the new topic, software testing techniques with test case design example. Okay. So what is actually software testing techniques? Software testing techniques which help you to better test case, create a test case, write a better test case. Okay, as you know that exhaustive testing is not possible because we cannot check the every characters in a text field, uh, like if you are making a calculator. Okay, and you have to check that it's work properly or not. Okay, so just you check two two to four inputs, addition, multiplication, subtraction, division, and then you will check that it's okay. But you can't check exhaustive testing means you cannot check the every input 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 5, 6 like this. You cannot check the exhaustive testing. It's not possible as we have already discussed in our previous lecture. Okay, so manual testing techniques help reduce the number of test cases to be executed while increasing test coverage. They help identify test conditions that are otherwise difficult to recognize. Okay, so in this lecture, we will cover the five important software testing techniques. Okay, so these are the five testing techniques. One is boundary value analysis, BVA, equivalence class partitioning, decision table based testing, state transition, error guessing. So boundary value analysis, decision table based testing, equivalence class partitioning, state transition, error guessing. These are the five techniques of the testing techniques. So first of all, we are starting from the first boundary value analysis. What is it? If an input condition is restricted between values x and y, then the test case should be designated with value x and y as well as value which are above and below x and y. देखिए, अगर आपको कहा जाता है, एग्जाम्पल भी गिवन है कि आपके पास इनपुट कंडीशन जो वो 1 से लेकर 10 तक के दरमियान वैलिड है, कि आप कहते हैं ना कभी कभार कि आप जो है वो इनपुट करें 1 से लेकर 10 तक। ओके, एंड 1 to 10। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है कि आप उससे एक नंबर कम और उससे एक नंबर ज़्यादा लेकर चेक कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। If an input condition is large number of values, the test case should be developed which need to access the minimum and maximum number. Her value above and below the minimum and maximum value are also tested. तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये वाली चीज़ जो बाउंड्री वैल्यू है ये भी आपको बिलो और मैक्सिमम मीन्स मिनिमम मैक्सिमम भी आपको चेक करनी होती हैं। ओके, तो नीचे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास कंडीशन 1 से 10 तक की कहा जाता है तो आपको क्या करना होता है, फिर आप बाउंड्री वैल्यू में उसकी बिलो भी देखनी होती है और above देखनी होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। Equivalence class partitioning. Equivalence class partitioning allow you to divide set of test conditions into partition which should be considered the same. This software testing method divides the input domain of progress into classes of the data from which test case should be designed. देखिए, आपके पास क्लास पार्टीशन क्या आपको अगर कहा जाता है कि 1 to 10, 1 to 10 का मतलब है टोटल 10 नंबर्स। आप चेक करें 1 to 10, ये मीन्स कि आपको टोटल 10 नंबर तक की चेक करना है, या आप ये कर ले 20 to 30, वही उतने ही नंबर आएंगे। 20 to 30 में वही नंबर आएंगे, 1 to 10 में वही नंबर आएंगे, नंबर ऑफ टोटल जो नंबर है 10। तो इसको हम कहते हैं क्लास पार्टीशनिंग, इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग हो रही है हमारे पास। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दिस टेक्निक्स, टेस्ट केस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू टेस्ट केस ऑफ एनी अदर वैल्यू द सेम क्लास। इट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई वैलिड एज वेल इनवैलिड इक्वलेंस क्लासेस। Hence, there are 5 equivalence classes. तो आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे कहा 1 to 10 और 20 to 3। तो अभी यहाँ पे इक्वलेंस क्लासेस कितनी बन रही है आप लोगों के पास देख सकते हैं आप लोग, कुछ ना से 0 तक।
1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर कुछ। अब देखें डेट से लेकर 0 तक इनवैलिड है, क्योंकि आपके पास जो क्लास की दी हुई है ये यहाँ पर, इसमें 0 से कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मीन इनवैलिड है। 1 to 10 वैलिड है आपके पास, 11 to 19 वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया, एंड लगा हुआ है। 20-30 वैलिड है, बट 31 टू आगे जो भी होंगे वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेंशन ही नहीं है कि आपके पास यू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम ईच क्लास आई -2। अब यहाँ पे देखो -2, यहाँ से -2 से 0 किया आपने, या कोई भी क्लास हमने ले ली, यहाँ से कोई एक वैल्यू ले ली, यहाँ से भी कोई एक ले ली, यहाँ से भी कोई एक वैल्यू ली, यहाँ से भी, तो आपको पता चल जाएगा भाई वैलिड कौन सी है, इनवैलिड कौन सी है। क्लियर है? सो इसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। देखिए सबसे पहले हमने कहा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जिसके अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर रहे होते थे। अब उसके बाद क्लास पार्टीशनिंग, जिसमें चेक करा था कि 10 to 20 है, 1 to 10 है, तो उसके बाद उस हिसाब से एनुअलिटी या वैलिड देखा जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। Decision table is also known as a cause effect table. This software testing technique is used for function which respond to a combination of inputs or events. For example, के तौर पर a submit button should be enabled if the user has entered all the required field. Decision table based का मतलब ये होता है, हम कहते हैं ना कि भाई ये सारी रिक्वायरमेंट आ गई, अब डिसीजन ले लो। मीन्स के अगर आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर चल रहा है और आप लोगों के 5 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों ने किसी ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये आप डिसीजन ले लेंगे कि अब हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, हमको दे देना है। अगर किसी बंदे के में जो है 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन उस बंदे को आते हैं, बट उसने किए अभी 3 है और टाइम भी बहुत पड़ा है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि देना है या नहीं देना है, तो वो देगा नहीं, क्योंकि उसको पता भी टाइम बहुत पड़ा है और मेरे पास अभी क्वेश्चन रहते भी हैं 2 से 3, तो वो डिसीजन लेगा कि पेपर मुझे देना नहीं है। बट वो तब देगा, अपना डिसीजन बेस करेगा, डिसीजन का बेस करता है उसके रिक्वायरमेंट पे कि उसने कितना काम किया है। अगर उसने पूरा पेपर कर लिया है, कंप्लीट करेक्टली कर दिया, उसको पता है, तो वो टाइम उसके बाद पढ़ा भी होगा तो वो कहेगा चलो दे दो, मेरा तो टाइम हो चुका है और मेरा पेपर भी हो चुका है, तो वो डिसीजन ले लेगा और दे देगा। तो इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम किस तरीके से डिसीजन बेस करते हैं कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी, अमजद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कोई और यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है, आपने देखा होगा बहुत रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं कि एडमिशन वगैरह के लिए आप आ जाए। तो कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, जब तक आप सारी डेटा को फिल नहीं करते, सबमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है कि आप डेटा फिल कर रहे होते हैं, सबमिट का बटन होता है, कुछ फील्ड्स होती है, आप फील्ड फिल करते हैं, और कुछ ऐसी फील्ड जैसे कि ईमेल फील्ड को आपने सबमिट नहीं लिखी नहीं, ईमेल लिखा नहीं है, और आपने सबमिट बटन जो एनेबल है उस पर क्लिक किया, तो होगा क्या, तो वो सर्वर के पास जाएगा नहीं, सर्वर के पास वो आपको ये बता देगा कि इसके अंदर ये वैलिडेशन आ जाएगी रेड कलर में, या क्या कि ईमेल मेंशन करें, ईमेल मेंशन करें, तो आप फिर दोबारा जाके ईमेल मेंशन करेंगे। अब क्या कि डिसीजन टेबल में क्या होता है, डिसीजन टेबल में ये होता है कि जब तक वो ईमेल लिखेगा नहीं तब तक सबमिट का बटन एनेबल ही ना हो, वो सबमिट का बटन क्लिक ही ना कर पाए, तो क्लिक नहीं कर पाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई मैंने कोई चीज़ तो मिस की है। अब क्या मिस किया तो वो देख लेगा, और जैसे ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेगा तो डिसीजन जो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई अब सबमिट के बटन को एनेबल कर दिया जाए ताकि वो इसको सबमिट कर सके। ठीक है, तो submit button should be enabled if user has entered all the required fields. The first task to identify functionalities where the output depends on a combination of inputs. If there are the large input set of combinations, then divide into smaller subset which are helpful for managing and decision table. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास है वो एनेबल हो जाएगा बटन जब आपने सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स को ओके कर दिया होगा, तो वरना आपके पास वो रिक्वायर्ड फील्ड में नहीं आएगा। तो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है यहाँ तक कि हमारे पास जो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है। तो ये वाली चीज इसके अंदर, और एग्जांपल क्या है, a submit button is contract from the enable only when the inputs are entered by the end user। अब अगर जो एंड यूजर का मतलब कि जो यूजर यूज कर रहा है,
जो यूज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर उसने सारे जो एंड यूज़र है जो यूज़ करता है, एंड यूज़र ने अगर सारे जो फील्ड्स है, इनपुट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, अगर उसने सारी फुलफिल्ड कर ली हैं, ईमेल, पासवर्ड्स, वॉट एवर क्वालिफिकेशंस, तो सबमिट का बटन जो है वो एनेबल्ड हो जाएगा। अदरवाइज सबमिट का बटन जो है वो एनेबल्ड नहीं होगा, और सबमिट का बटन एनेबल्ड नहीं होगा तो जो बंदा है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सबमिट बटन तो आपको पता चल गया कि एनेबल अगर करेंगे तो ये आपके पास वर्क करेगा, अदरवाइज वो आपके पास वर्क नहीं करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेट ट्रांजिशन। State transition techniques changes in input conditions change the state of application under test. AUT, application under test. These testing techniques allow the tester to test the behavior of an AUT, application under test. The tester can perform this action by entering various input conditions in a sequence. State transition techniques. The testing techniques team provides positive as well as negative input text value for evaluating the system behavior. देखें, आप लोगों के पास सिस्टम बिहेवियर को चेक करने के लिए वी हैव टू चेक द पॉजिटिव इनपुट्स आल्सो एज वेल एज नेगेटिव इनपुट्स टू evaluate the system behavior. Okay, so if you want to write a test case for a Gmail login, okay, if you want to write a Gmail login, so you have to uh, provide the input, you have to test the positive inputs as well as negative inputs. Positive inputs means testing, negative means negative testing. You want to check the negative inputs also. Okay, so you are thinking your question is that what is negative input, what is negative input. Okay, negative inputs means that if you are using a valid password, okay, if you are using a valid password in any of the first three attempts, the user will be able to log in successfully. If the user entered the invalid password in the first or second try, the user will be prompted to re-enter the password. When the user enters the password incorrectly three times, the action has taken an account will be blocked. ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप इनवैलिड जो पॉसिबल नहीं है उस तरीके की टेस्टिंग करें, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में आता है कि हमने ईमेल एड्रेस लिखी, पासवर्ड लिखा, करेक्ट हो गया और चल गया। बट हमारा जो मेन टारगेट है वो नेगेटिव में भी है कि आप इनवैलिड चेक करेंगे, इनवैलिड यूजर भी चेक करेंगे कि भाई ये प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है। इनवैलिड को 3 मरतबा करें, तो अगर वो फर्स्ट से सेकंड थर्ड और तीनों में से स्टार्टिंग के जो 3 अटेम्प्ट है, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, उनमें से अगर करेक्टली लॉग इन, करेक्टली पासवर्ड ईमेल एड्रेस डालता है तो वो लॉग इन हो जाएगा जो जीमेल अकाउंट है। अदरवाइज अगर उसने जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में जैसे इसको पाया जाएगा रीअटेम्प्ट योर पासवर्ड, थर्ड चांस, सेकंड चांस, लास्ट चांस, अगर वो लास्ट चांस में भी अगर वो नहीं कर पाता तो अकाउंट जो है उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास भी कभी कभार होता है कि भाई आपके पास इतनी चांस है, अदरवाइज आपका मोबाइल वगैरह लॉक हो जाएगा। आप देखा होगा मोबाइल वगैरह के फोन वगैरह, इसको हम कहते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन। एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर होती है ना, तब ये स्टेट ट्रांजेक्शन की जाती है। स्टेट ट्रांजेक्शन की डायग्राम को देख सकते हैं कि स्टार्ट, फर्स्ट ट्राई, अगर इनकरेक्ट है तो सेकंड ट्राई पे आ जाओ, अगर इनकरेक्ट है तो थर्ड ट्राई पे आ जाओ, अगर फर्स्ट ही करेक्ट है तो गुड है, अगर फर्स्ट ट्राई करेक्ट नहीं है तो सेकंड ट्राई पे आ जाओ, सेकंड करेक्ट है तो गुड है, अगर सेकंड करेक्ट नहीं है थर्ड करेक्ट है, थर्ड पे आ जाओ, करेक्ट है तो एक्सेस ग्रांटेड कर देगा। अदरवाइज अगर थर्ड में भी वो ब्लॉक निकला तो फिर वो कर देगा ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम लोगों की मजीद क्लियर हो जाएगी कि स्टार्ट में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी एक में भी वो करेक्ट कर देता है तो जो एक्सेस जो ग्रांटेड हो जाएगा, अदरवाइज इसको फिर एक्सेस ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई हम लोगों के पास। और इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है एरर गैसिंग। So error guessing is a software testing technique based on guessing the error which can
prevail in the code. The technique is heavily based on the experience, where test analysis use their experience to guess the problematic part of the testing application. तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है कि गैस करना कि भाई इसके अंदर क्या इशू आ रहा है या क्या नहीं है। हमारे पास जो टेस्टर होता है वो क्या करेगा, वो कुछ अपना एक्सपीरियंस भी चेक करेगा, ठीक है, कि इसका एरर क्या, जैसे कि हमारे पास क्या, अब लोगों को पता है, आप लोगों को मोबाइल के अंदर आप या ईमेल एड्रेस खोलते हैं बार बार, तो अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत लगाई तो आपको पता होगा कि ये लॉगिन नहीं होगा, न्यू बंदा होगा उसको नहीं पता, पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें ये एरर आ सकता है। तो जितना एक्सपीरियंस स्किल्स एनालिटिकल्स बढ़ती जाती है उतना आपका एरर गेसिंग का आइडिया भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो टेस्ट केसेस जो है वो राइट करते हैं आप लोग एक्सपोज एरर्स। एक्चुअल में टेस्ट केस हम क्यों राइट करते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भाई टेस्ट केस में एरर्स को एक्सपोज करना, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए वाई we need test case, या why we are writing the test cases, what is the need of test casing and what is test case, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई टेस्ट केस को एक्सपोज किया जाता है एरर्स के लिए। और डिजाइन टेस्ट केस बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर टेक्निक्स एनालिटिकली यूज पास्ट एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस आप लोगों के पास आ सकती हैं यहाँ पर। Test should use previous experience of testing similar application, understanding of the system under test, knowledge of typical implementation, remember previously told areas, evaluate historical data and test results। कंक्लूजन की स्लाइड में हमें बताया हुआ है कि हमने टोटल 5 टाइप की प्राइमरी जो टेस्ट टेक्निक के बारे में बताया। बाउंड्री एनालिसिस टेस्टिंग होती है जो बाउंड्री बिटवीन करती है पार्टीशन, इक्वल इसका पार्टीशन इज नाउ टू डू सेट ऑफ टेस्ट कंडीशन इनटू पार्टीशन व्हिच शुड बी कंसीडर्ड द सेम। डिसीजन लेवल आपके पास, जैसे कि अगर आपने कॉम्बिनेशन रिपोर्ट अगर करेक्ट देनी है तो वो सबमिट के बटन एनेबल करे, इस तरीके से वो फंक्शन को रेस्पॉन्ड करती है। ट्रांजैक्शन जो स्टेट ट्रांजैक्शन की उसके अंदर इनपुट कंडीशन चेक स्टेट ऑफ एप्लीकेशन यूआईटी जो एप्लीकेशन अंडर टेस्ट होती है उसके बाद करनी है। एरर गेसिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक व्हिच इज बेस्ड ऑन गेसिंग द एरर व्हिच कैन प्रेवेल इन द कोड। तो यहाँ तक ये चीज़ थी, ठीक है। आपके यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप लोग